धन्यवाद। शंख की ध्वनि से हमारा सत्र का प्रारंभ हो रहा है। हमारा अभी का सत्र है धर्म at 2047। Bharat is a civilization for me personally. One of my favorite heroes from the freedom struggle, Shri Netaji Subhash Chandra Bose, describes Bharat, though geographically, ethnologically, and historically, Bharat represents an endless diversity to any observer. There is nonetheless a fundamental unity underlining this diversity. The most important cementing factor has been the Hindu religion, unquote. North or south, east or west, wherever you may travel, you will find the same religious ideas despite different cultures and different traditions. All Hindus globally look at India as Pavitra Bhumi Bharat Mata. It is not without this sense of geographical unity. 1,000 years ago, we have known a child born in Kaladi in present-day Kochi district of Kerala renounces at the age of 8 to perform a Digvijay Yatra and travels to places as far as Odisha, Badrinath, Dwarka and Kashmir. हम सब उन्हें जानते हैं श्री आदि शंकराचार्य। विष्णु पुराण में कहा गया है, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संततिः। देश वर्षम जो समुद्र के उत्तर में और बर्फीले पहाड़ों के दक्षिण में स्थित है, भारतम महाकाल है, वहाँ भारत के वंशज रहते हैं। भारत 247 की कल्पना करते हुए मैं रोमांचित हो उठती हूँ। क्या भारत को आधिकारिक रूप से कहा जाएगा कि वो सनातन धर्म भारत है? क्या भारत को आधिकारिक तौर पर भारत कहा जाएगा? जो हम आज इंडिया कहते हैं, क्या उसको आधिकारिक रूप से भारत कहा जाएगा? Would Bharat be then a Hindu Rashtra along with maybe Nepal, Mauritius, Guyana, Fiji and several other countries? Would following Sanatan Dharma be pinnacle for several global ills plaguing the world? और इसी सब प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ आज के स्पीकर्स को मंच पे, श्री चिलकुर बालाजी रंगराजन जी को, श्रीमती एस्थर जॉनसन जी को और हमारे आज के सत्र की मॉडरेटर मिसेस सीनू जोसेफ जी को। Shri Rangarajan Chilkur Balaji belongs to the family of hereditary Archaka cum trustees of famous Shri Chilkur Balaji Venkateshwara Swami Temple of Telangana. In a reenactment of a 2700-year-old incident believed to have taken place in Tamil Nadu, as the Chilkur Balaji Temple head priest, he carried Aditya Parsari, a young man from the Dalit community, on his shoulders and entered the temple complex adorned with floral decorations. He has worked for the religious freedom and upliftment of the weaker sections, the society, through various initiatives. मैं आग्रह करना चाहूँगी श्री नील विटलानी जी और श्री दिनेश चौधरी जी को कि वो मंच पे आके हमारे आज के स्पीकर श्री रंगराजन चिलकुर जी बालाजी का स्वागत करें।
Miss Esther Johnson ji, she also is being called as Kamakshi, is a former evangelist with a research-oriented master's degree in Christian studies from Georgia, United States of America. She is a co-petitioner in the PIL against forced conversions in the Supreme Court along with Shri Ashwini Upadhyay ji. She is trained in Christian theology and doctrines and uses it to counter Christian conversions at the grassroots level. Trains volunteers working against conversions. She works actively both with the academia and at the grassroots, raising awareness about the threat from Christianity to national security and to our civilizational identity. मैं आग्रह करूंगी श्री हर्ष अग्रवाल और श्री अंकित मिश्रा जी को मंच पे आके एस्थर जी का स्वागत करने के लिए। हमारे आज के सत्र के मॉडरेटर है सीनू जोसेफ जी। She is a menstrual educator, an author, a TEDx speaker, and one of the pioneers of the menstrual health movement in Bharat. Her work on menstruation has been unique, and its efforts to unearth the ancient science behind native menstrual practices and bring forth the Bharatiya perspective on menstruation. I am sure I was enlightened by her amazing videos on the subjects, and so would have been the audience sitting in front of us. मैं आग्रह करना चाहूँगी राजपाल गोटा जी और हमारे कार्यक्रम के सबसे यंगेस्ट वॉलंटियर ध्रुवन देसाई को आके सीनू जी का स्वागत करें। मैं ये बिल्कुल ही अपना सौभाग्य मानती हूँ कि आज सुबह मुझे एक कॉल आया और कहा गया कि आज के सेशन आप मॉडरेट करिए। ये पहले से प्लान नहीं हुआ था। कल से एस्थर भगिनी मुझसे कह रही थी कि आप मॉडरेट कर लो और आज सुबह जब मैंने स्वामी जी ने कहा दिस इज व्हाट वी कॉल बालाजी's blessings. So with Kamakshi Devi's Sankalp and Shri Balaji's blessings, let us begin today's session. तो मैं सिर्फ सवाल पूछूंगी आज, क्योंकि हमारे जो गेस्ट है वो इतना सारा काम कर रहे हैं इस विषय के ऊपर, और मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग भी इन्हें अपने बात को पूरा करने का एक मौका दीजिए, क्योंकि बहुत ही हमें सीखना है इन दोनों से और इनके काम से। तो मैं सवाल अभी पूछूंगी 2-3 सवाल, और उसके बाद अंत में आप सबको प्रश्न पूछने का मौका मिलेगा। तो पहला सवाल मेरा स्वामी जी से होगा। स्वामी जी, आज के इस समय में और पिछले समय में, लेट अस से मेबी अराउंड 1947, अगर हमें कंपेयर करना है तो धर्म का पालन करना इस अभी के समय में कठिन है या पहले था, और क्यों है ऐसा? नमस्ते से पहले ये जो लिटरेरी फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किए हैं सूरत लिटरेरी फाउंडेशन, इन सभी को कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद हम करते हैं। उनको एक जोरदार ताली चाहिए। और ये पैनल्स जो डिजाइन किए, आखिर में धर्म को रखा है, इसको भी बहुत सोची समझी
साजिशी बोल रही है बाजू बैठी हुई। ये साजिशी लगता है, लेकिन भगवान का आशीर्वाद आप सब पे है, इसीलिए ये बहुत मुख्य भूमिका निभाने वाला चीज है धर्म। इस देश की नींव जो बोलते हैं वो धर्म है। इस देश की जो परंपरा बोलते हैं वो भी धर्म है। इस देश की सांस वो भी धर्म ही है। और मैं गोपाल जी को प्रत्येक हमारे बालाजी भगवान का आशीर्वाद सभी ऑर्गेनाइजर मेंबर्स को मिले, लेकिन उनकी स्पेशल रिक्वेस्ट थी मुझे कि एक दिन तो भी आने के लिए, क्योंकि चिलकुर बालाजी मंदिर आपने कितने लोग आए हैं उनको नहीं मालूम, क्योंकि वो तो इधर से बहुत दूर है तेलंगाना में। वीकली बहुत क्राउड होता है शनिवार और रविवार। उस प्रांत से मुझे आने के लिए बहुत पुल चाहिए। गोपाल जी का पुल बहुत बड़ा है, इसलिए इधर लेकर आया मुझे। मेरे सामने बैठी है शेफाली जी, उनको और एक बार प्रत्येक रूप में याद दिलाऊंगा, क्योंकि वो भी इस पैनल में होती, क्योंकि गोवन इंक्वेस्ट के शी हैड मेड मी लिटरली क्राई द डे शी केम एंड स्पोक इन हैदराबाद on Goan inquest, and the बॉबी का मूवी में के साहिबा से गोवन फोक सॉन्ग करके बोल रही थी, तब तक मुझे नहीं मालूम था इतना कन्वर्शन बहुत बुरी तरह से इस देश में हुई है। बहुत सारे पैनलिस्ट को मैंने सुना टीवी में, फेसबुक लाइव में, और बहुत सारे पैनलिस्ट लंच के बाद सोने के लिए मुश्किल होता है, जागने के लिए पता नहीं वो अपने रूम में विश्राम कर रहे हैं। लेकिन ये जो है, जो मूर्ति दिए हैं मेमोरेबलिया वॉट एवर दिस इज स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, सरदार पटेल जी को हम लोग एक बार बड़ा ताली से याद करते रहना चाहिए, क्योंकि जैसा सिनू जी पूछी थी 1947 में धर्म को पालन करना आसान है या अभी पालन करना आसान है? मैं बोलता हूँ 1947 में पालन करना ही आसान है। आज की इस तारीख में बहुत मुश्किल है, क्योंकि उस समय में आपको पॉलिटिशियंस नहीं थे, उस समय में आपको कोर्ट इंटरफेयर नहीं करता था, उस समय सरकार आपके साथ इंटरफेयर नहीं करती थी। ब्रिटिश सरकार थी, लेकिन भी वो लिमिट में रहती थी। अभी हर चीज में हस्तक्षेप करती है। आपके पास संविधान है, संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर में धर्म नहीं है, बेसिक स्ट्रक्चर में धर्म का बात ही नहीं है। तो हम इसी विषय पे और एक्सटेंड करके बात करेंगे, लेकिन 1947 में जब इंडिपेंडेंस डे के स्पीच में, महापेरिवा का स्पीच है, उसमें वो बता रहे हैं हमारे धर्म को रक्षा करना बहुत मुख्य है। जो बीच में जो चक्र है वो अशोक चक्र है, सुदर्शन चक्र है, उसके द्वारा आपका धर्म को रक्षा करने का बहुत मुख्य काम करना चाहिए। और संविधान में थोड़े इंपॉर्टेंट प्रोविजंस लगाए। हमारे महापेरिवा चंद्रशेखर सरस्वती स्वामी जी आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 27, आर्टिकल 26 को परमात्मा तत्व बोलते हैं, आर्टिकल 25 जीवात्मा तत्व है, आर्टिकल 25 हमारा जीने के लिए बहुत मुख्य तत्व है। हमारा जीने का क्या मतलब है? इस देश में हम क्यों पैदा हुए हैं? इसके बाद और एक जन्म नहीं मिले, भगवान के चरण में जाके उधर हम लीन होना के लिए हम मानव शरीर मिलता है।
आप लोग कई गुजरात के लोग तो बहुत सारा भागवत सप्ताह करते हैं, बहुत करते हैं। हर सप्ताह में एक ही भागवतम में बोलते हैं, एवं दुर्लभ्य वस्तुन्यपि सुलभतया हस्तलभ्य अदन्यते। केरला के नारायण भट्टत्री का श्लोक है, जो मानव शरीर मिला है ये व्हाट्सअप करने के लिए नहीं मिला है, ये फेसबुक लाइव में जाने के लिए नहीं मिला है, ये जैसा इकोनॉमी के बारे में बता रहे 20 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए नहीं मिला है। ये मिला है आपको, आपके जो फोकस है आप करिए काम, बी मेटीरियलिस्टिक टू अ लेवल। उसके बाद आपका क्या गोल है, आपका क्या मकसद है, आप क्या बनना चाहते हैं, भगवान के चरण में आपको अपने आप को सौंपना चाहिए। आत्मसमर्पण, शरणागति, ये हम सीखे, इसीलिए ये हम इधर पैदा हुए। लेकिन 1947 के बाद ये सुनने के लिए बहुत मुश्किल हो गया। स्कूल्स अपने हाथ में नहीं है, कॉलेजेस अपने हाथ में नहीं है, टेम्पल्स अपने हाथ में नहीं है, नो इंस्टीट्यूशन इज नॉट अपने हाथ में, कोर्ट नहीं है, पुलिस व्यवस्था अपने हाथ में नहीं है। ऐसा हो गया, सेक्युलर करके एक वर्ड जोड़ दिया उसमें। ये सेक्युलर है, हमको क्या बोलते हैं, नपुंसक बना दिया। नपुंसक मतलब आई विल नॉट यूज दैट वर्ड, इट इज ओनली यूज्ड ऑन अस। हमारे ऊपर पैर लगा के दबाने के लिए ये सेक्युलर वर्ड यूज किया। नो अदर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन हैज दैट काइंड ऑफ इंटरफेरेंस। आप चर्चेस जो रन करते हैं, स्कूल्स, उसका सिलेबस उनको दिया गया। जो मस्जिद रन करते हैं सिलेबस, उनको फ्रीडम है। लेकिन अगर से इंस्टीट्यूशन जो है अपना धर्म के लिए प्रचार करे, रामकृष्ण मिशन को देख लीजिए, कलकत्ता में वो स्टार्ट किए, कुछ नहीं कर पाए, देन दे हैव टू कम बैक टू दिस। ऐसा धर्म 1947 में ऐसा, अभी we have to do some repair work that I'll come to that after if you ask me second question. But as far as मुझे पूछेंगे 1947 में ही धर्म को मानना या आचरण करना आसान था। धन्यवाद स्वामी जी। मुझसे लोग कई बार पूछते हैं कि आपका नाम तो क्रिश्चियन है, तो आप धर्म के बारे में क्यों बात करते हो? तो स्वामी जी ने जो बात बताई, धर्म के अनुसार वो जीवात्मा जब इस पुण्य भूमि में जन्म लेती है तो जन्म से ही वो हिंदू है, जन्म से ही वो धार्मिक है। और इसीलिए यहाँ पे हम लोग बैठे हैं, एस्तर जी और मैं। तो मैं अगला सवाल एस्तर जी से पूछना चाहूँगी। अब स्वामी जी ने बताया कि पहले कैसा था और अब परिस्थिति किस प्रकार है। आप ये बताइए कि अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन में या फिर लोगों की सोच में बदलाव नहीं लाएंगे तो आगे 2047 में क्या हालत होगी? हेलो, थैंक यू सो मच सिंह जी। सबसे पहले तो मैं सूरत लिटरेरी फेस्टिवल ऑर्गेनाइजर्स गोपाल जी गोस्वामी और युवराज जी पोखरना को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ और धन्यवाद करती हूँ यहाँ मुझे आमंत्रित करने के लिए। तो जैसे स्वामी जी ने कहा कि ये धर्म का टॉपिक सबसे लास्ट में ये जो रखने का ये जो साजिश है ऑर्गेनाइजर्स की, तो दिस इज टू से दैट दे हैव सेव्ड द बेस्ट फॉर द लास्ट, आई वुड से। एंड ऑल्सो धर्मा विल हैव द लास्ट वर्ड, इसके बाद कोई बात नहीं होगी। सो धर्मा शुड हैव द लास्ट वर्ड टुडे, both metaphorically and literally. So, Sinuji, you have asked a very important question. I get this a lot of times. किसी निराशावादी हिंदू से आप पूछो कि हिंदुओं की या हिंदुइज्म की क्या हालत होगी अगले 25-30 साल में,
बट क्योंकि हम बात कर रहे हैं 1947 की, तो अगले 25 साल में हिंदुओं की क्या हालत होगी। तो एक पेसिमिस्ट हिंदू ये बोलेगा कि हिंदूज माइनॉरिटी हो जाएंगे। मैं बोलती हूँ कि 25 साल पहले, दिस इज 2022 में अगर हमको वार्निंग मिली कि हम माइनॉरिटी होने वाले हैं, फिर भी 2047 आते आते अगर हम सच में माइनॉरिटी हो गए तो लानत है ऐसी एथनिसिटी पर। आई वुड से कि 25 साल कम पड़ गए हमको कुछ उठ के करने को, अपने आप को बचाने को। सो आई वुड से अपने ही राष्ट्र में, मतलब अपने ही देश में हमारी एथनिसिटी अगर माइनॉरिटी हो गई, तो आई थिंक सच अ एथनिसिटी डिजर्व्स टू बी अ माइनॉरिटी इफ वी कैन नॉट डू एनीथिंग इन 25 years from now. So but ask the same question to an overtly optimist, एक आशावादी हिंदू से ये पूछो तो वो ये कहेगा कि वेस्ट में जहाँ पे क्रिश्चियनिटी की शुरुआत हुई थी तो वहाँ पे तो डिक्लाइन हो रही है, तो इंडिया इज सेफ दैट वे, तो हमें कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। आई वुड से सच अ पर्सन इज ईदर एस्केपिस्ट और ही इज वेरी लेजी, ही और शी इज वेरी लेजी टू कंडक्ट द रिसर्च। पर क्या सच में वेस्ट में ये खत्म हो रही है क्रिश्चियनिटी? सो यस, इट इज डिक्लाइनिंग इन द वेस्ट जहाँ पे ये शुरुआत हुई थी। अगर आप वेस्ट के कुछ सर्वे ऑर्गेनाइजेशंस, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस ग्लोबल वाले, जैसे गैलप पोल एक है, बारना सर्वे करके एक सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसे ही प्यू रिसर्च करके, ये बड़े 3 बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं which conduct demography studies across the world. अगर इनके आंकड़ों पर आप जाए तो पता चलता है कि क्रिश्चियनिटी इज एक्चुअली अ डिक्लाइनिंग रिलीजन इन द वेस्ट। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया भी ज्वाइन हो गई है डिक्लाइनिंग ऑफ क्रिश्चियनिटी की कैटेगरी में। बट इज दिस गुड न्यूज फॉर इंडिया? दैट इज व्हाट वी हैव टू फोकस ऑन। Let me tell you, it's very depressing, but this is a very bad news to India, because you have to understand that Christianity is an empire, so it's a political movement, and a political movement का एक ही एजेंडा होता है dominion, world dominion. तो also Christianity is like a virus, वो मरता नहीं है, वो mutate होता है। तो if it is declining in the West, it's a very it's common sense that it has to grow somewhere else, it has to be transported to somewhere else, and that is the global south, or global, I mean Christianity के हिसाब से it's global south and global north, I mean geopolitics के हिसाब से, so we are on the global south. Global south में India is their target. Why is India the target? Because जिस आइडियोलॉजी से क्रिश्चियनिटी शुरू हुई है उसके हिसाब से ऑल द अदर पेगन सिविलाइजेशंस हैव बीन ऑलरेडी क्रिश्चियनाइज्ड। द ओनली civilization that has not been Christianized is the Indian civilization. That is why their target is on India and they will do anything to Christianize it. अब देखिए 10 years before, I mean just 10 years ago, इनकी एग्रेशन इतनी नहीं थी, बाय हुक और क्रूक वो लोग कन्वर्ट नहीं करते थे, कन्वर्ट जरूर करते थे, बट जिस तरह से आजकल आपको दिखाई देते हैं ये व्हाट इज द वर्ड दे यूज, द चंगाई सभा, यू नो, द हीलिंग मीटिंग्स एंड ऑल दैट, ये इतने सारे नहीं होते थे। नॉट जस्ट बिकॉज देयर वाज नो अवेयरनेस थ्रू सोशल मीडिया एंड ऑल दैट, पहले होते भी इतने नहीं थे। Now what they have done is they have increased their aggression by hook or crook, they are converting, कुछ भी करो but we have to convert. There are so many pastors working in the villages in India, rural India अगर आप देखेंगे तो there are so many people that are working to convert people for a salary. जिस तरह से when I became a Christian, Eureka Folks was a new concept. तो हम लोग जिनको झाड़ू की आदत होती थी, यूरेका फोब्स, दैट वैक्यूम क्लीनर वाज अ वेरी न्यू कॉन्सेप्ट। द हाउसवाइफ्स को कन्विंस करके कि झाड़ू को इससे रिप्लेस करो, ये कन्विंस करना बड़ा मुश्किल, बहुत मुश्किल होता था, बट यूरेका फोब सक्सीडेड। Christianity is just like that. It has a amazing
सेल्स स्ट्रैटेजी और मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, वहां तक तो उनको दाद देनी चाहिए. सो बाय हुक और क्रूक दे विल सेल दिस प्रोडक्ट कॉल्ड क्रिश्चियनिटी. अभी जनवरी 10th एंड 11th को चेन्नई में एक मीटिंग हुई थी, हाई लेवल मीटिंग में 300 इवेंजलिस्ट ने भाग लिया था. वहां पे उनका ये एजेंडा है 2030 तक, हम लोग 47 की बात कर रहे हैं, ये 2030 तक they want to plant some 400,000 churches, 4 lakh churches in Indian villages. अब आप सोचिए उनके मुकाबले हम कहाँ हैं. So we are going talking far ahead into the future, but they are just in the neighborhood of this of where we are today, 2022. So their strategies are very pakka. So this is really a bad news. These people are not talking about any other countries right now. Their focus is India. So I would say both the निराशावादी opinion and the आशावादी position, ये दोनों ही भयानक है. इनके बीच में से what is the path that we should choose? I will discuss about that when Sinu ji will again lead the. धन्यवाद भगिनी, बहुत ही खूबसूरती से आपने डिस्क्राइब किया. और मैं ऐड करना चाहती हूँ, जो आपने कहा कि क्रिश्चियनिटी म्यूटेट होता है ना, तो एक कॉन्सेप्ट है इंडियनाइजेशन ऑफ द चर्च करके. हाल ही में मैं केरला गई थी और वहाँ के चर्चेस देख के इतना आश्चर्य हुआ. चर्च में ध्वजस्तंभ है, चर्च में उत्सव मनाते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार जिस प्रकार एक हिंदू देवस्थान में होता है. तो पूरा हमारे कल्चर को कॉपी करते हैं ताकि हिंदुओं को पता भी नहीं चले कि ये थोड़ा इंडियनाइज्ड वर्जन ऑफ क्रिश्चियनिटी है. और हमारी जो मातृभाषा है उसमें सारे सर्मन्स होते थे, पहले ऐसा नहीं था. तो हमें बहुत जागरूक होना है. वी हैव टू बी वेरी अवेयर कि क्या हो रहा है, क्यों हिंदुओं को इतना टारगेट किया जाता है. क्योंकि हम इतना एक्सेप्टिंग हैं, हम इतना शांति से अपने भक्ति से, जिस प्रकार हम हिंदू देवस्थान जाते उसी भक्ति से हम चर्च भी जाते, लेकिन चर्च में एजेंडा थोड़ा अलग रहता है. तो हमें बहुत जागरूकता की आवश्यकता है. मैं ऑडियंस से क्वेश्चंस लूँगी, थोड़े और सवाल पूछेंगे यहाँ के गेस्ट से. स्वामी जी, द नेक्स्ट टॉपिक, अगला जो विषय है जो बहुत लोगों ने चर्चा की है वो शबरीमला के ऊपर है. तो मैं सीधा आपसे यही पूछूंगी कि आपको क्या लगता है कि क्या हुआ, what happened and how do you look at that whole judgment and how it changed the way the Hindu practices are treated by the court of law? What did it do to that? I'm very very happy. मुझे बहुत गर्व हो रही है कि केरला के जो लाखों औरतें, लड़कियां इस शबरीमला के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के व्यतिरेक खिलाफ मुहिम चला. एक बार उनको थोड़ा जोर से ताली बजाइए. मुझे याद है 28 सितंबर 2018 मेरी माँ हॉस्पिटल में थी. शी वॉज ऑन द लास्ट डेज एंड जजमेंट केम एंड एज यू नो द टीवी चैनल्स आर ऑलवेज लुकिंग फॉर मी. मैं मेरा माँ के पास था और मेरी माँ एक बात बोली, इतना वो वर्बल कभी नहीं बोली कि என்னடா இந்த தூரமான அவளை பற்றி கூட கோர்ட்டு தீர்ப்பு கொடுக்குமா. இட்ஸ் அ தமிழ் வேர்ட். Regarding menstruation also the court will give judgment. She asked the question. Shabarimala was not on menstruation. The issue was not on menstruation. But the media, the public interest litigation gave a wrong twist to the whole movement. Because women menstruate, they are not allowed inside Shabarimala. No, that was not at all the reason.
Ayyappa was an Aishtika brahmachari and he had the vow to restrict the women in certain age group. Sinu has brought out a book on that. I request all of you to go and read it. Everything I cannot tell you here now. थोड़ा suspense भी रहना चाहिए. But what the Supreme Court did was a nonsensical thing. 5 judges, actually it was a 3 judges bench, and how the court manipulated it, made it a constitution bench. 5 judges, 4:1 judgment was given. Among that, 1 judge was a woman, Justice Indu Malhotra. उनके लिए एक बड़ा जोर से ताली बजाई. Actually, वो lady judge should have given a judgment against, in favor of temple entry. She gave a dissenting judgment, and that judgment we have to, put it on our head. Actually, that is a real judgment. 4:1. इसमें क्या हुआ है? सुप्रीम कोर्ट एक इन्वर्टेड कामास में वर्ड यूज किया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी. अब मोरालिटी होता है, इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी क्या होता है? मैंने डिक्शनरी में ढूंढ के परेशान हो गया. मोरालिटी का ऑब्जेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशनल कहां से हो गया? सरप्राइजिंग. क्योंकि आर्टिकल 26 begins subject to morality and other things. So if you want to denigrate a custom or usage or bringing under judiciary, you can put a doctrine called constitutional morality. अभी ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अगेंस्ट फर्स्ट थिंग constitutional morality. Second important point was the deity does not have any fundamental rights in this country. आप लोग समझ में आ रही है? इस देश में जो भगवान विराजमान है उनको कोई फंडामेंटल राइट नहीं है. रोहिंग्या रेफ्यूजीज को होगा. इस देश में जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको होगा, लेकिन जो भगवान विराजमान है उनको कोई फंडामेंटल राइट नहीं है. क्योंकि हमारे एडवोकेट साई दीपक साहब वो आर्ग्यू करे कि deity is an Aishtika brahmachari. He has got a rule that he will not have the women within the puberty age to come and have that. That is the age group 10 to 50, that's what they said. Iske against, we all fought. I was also in that. My mother passed away on the same day, next day. And after that, we jumped into it. October 2nd, the Shabarimala royal family called an agitation. They expected 5,000 people. 5 lakh and above people came on the road. All the women. हालांकि women को एंट्री के लिए कोर्ट दिया, वुमेन बोला हम नहीं आएंगे, हम आने भी नहीं देंगे. दूसरी उधर से हम लोग रिव्यू के लिए गए तो 9 जजेस बेंच के पास गया. उसके बाद हम चिलकूर बालाजी से इम्प्लीट पिटीशन लगाया. आप सरप्राइज हो जाएंगे, 9 जजेस बेंच में माय डेटी चिलकूर बालाजी went and asked the Supreme Court, what are my fundamental rights in this country? If the judiciary respects principles of natural justice. I am using purely English language क्योंकि इसका हिंदी में ट्रांसलेशन मुझे आता नहीं. अनुराग जी आप बैठे हैं, हालांकि आप ये सेशन में नहीं रहने वाले थे, आप बैठे हैं क्योंकि अनुराग जी इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट में जो डेटीज किडनैप होके जाते उनको वापस आने के लिए जो यूके जजमेंट है नटराज स्वामी कोर्ट, डेटी को वो मान रहे थे भगवान, लेकिन अपना जो कोर्ट है सेड डेटी डज नॉट हैव एनी फंडामेंटल राइट्स. हमारा डिसमिस कर दिया पिटीशन. शिरूर मठ वाज रिप्लीटिंग, डिसमिस्ड. तंत्री of
of Ananta Padmanabh, he implemented, dismissed. Unfortunate. हमने उसके बाद राष्ट्रपति जी को लेटर बड़ा, see it's a big story. I don't want to continue, but we raised an important question. Under Article 363, the deity was a ruler of this country, Kerala Ananta Padmanabh. If a ruler has some treaty with the government of India, thanks to Sardar Vallabhbhai Patel ji, who united 543 kingdoms. You give him another big hand. Impossible. 543 kingdoms. Imagine, he went and talked to every royal family and made them join this Union of India, promising that this country will have Ramarajya. रामराज्य का मतलब जानते हैं? ये राम का राज्य। ये राम का राज रहेगा। इस प्रॉमिस के हिसाब से आप ओरछा, कितने लोग ओरछा गए हैं? मध्य प्रदेश। ओरछा में एक राम मंदिर है, उसके अंदर जो राम लला विराजमान है वो अयोध्या से लिया गया राम लला है। दिस इज द हिस्ट्री ऑफ ओरछा। हाउ मेनी ऑफ यू हैव गॉन टू मेवाड़? मेवाड़ में एकलिंग जी मंदिर है। एकलिंग जी उस देश का राजा है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखित है, उनकी मेवाड़ कॉन्स्टिट्यूशन में। अनंत पद्मनाभ स्वामी केरला, द डेटी इज अ किंग, रॉयल, सुप्रीम। उनके दास जो है, जो राजा है, वो राज करते हैं। पद्मनाभ स्वामी के दास बनके उनके मुकुट में भगवान के पादुका, जो चरण स्लीपर्स जो पादुका, वो रख के राज करते हैं। इतना हिस्ट्री है। 543 किंगडम्स आर यूनाइटेड विद द प्रॉमिस, इस देश में राम राज्य होगा। है अभी राम राज्य? जब सुप्रीम कोर्ट ऐसा जजमेंट देता है तो हमने बोला आर्टिकल 363 के हिसाब से यू हैव नो बिजनेस टू एंटर इनटू द अग्रीमेंट, यू आर बार्ड फ्रॉम एंटरिंग इनटू दैट अग्रीमेंट। हमने लिखा। ये मणि साहब मैं बोलना इम्पोर्टेंट, बाबू लोग क्या कहे मालूम है? बाबू लोग, IAS बाबू लोग, हमारे प्रधानमंत्री जी गुजरात के सपूत, he went and promised in the open Thiruvananthapuram public meeting, you give him big hand, Modi साहब। वो बोले सबरीमाला का इशू हम सुप्रीम कोर्ट में प्रॉपर पिटीशन डाल के सॉल्व करेंगे। ये बाबू लोग क्या बोले मालूम है? That cannot be done. This deity's fundamental rights issue, you cannot write like that. President cannot give that kind of a reference. Unfortunate. ऐसे बाबू लोग से हम 2047 से हम जाते पीछे। We are having such a big problem. My request is through this, another 1 minute I'll complete. We are in a situation where ज्ञानवापी केस में अभी क्लैरिटी आ गया। एक बार ताली बजाइए। हमारा बेटी जो है वो चुप नहीं बैठे। ज्ञानवापी के शूलिंग के माध्यम से अभी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगेन द सेम क्वेश्चन, डज द डेटी हैव एनी फंडामेंटल राइट्स और नॉट? क्योंकि वो लोग बोल रहे हैं हम उधर ही वजू करेंगे, उधर ही हम वजू करेंगे बोल रहे हैं। उधर कैसा वजू करेंगे? वो तो शिवलिंग है, उनके ऊपर आप पैर रख के धोएंगे क्या? When it is identified that is a Shivalinga, how can you allow somebody to wash their feet there? Now we have requested the Honorable Chief Minister of Uttar Pradesh, Yogi Adityanath ji, because we have implemented in that Gyanvapi case and put the Mewar Constitution, we have put the Orcha Constitution, we have put everything. Padmanabha Swami is not interested now. All these kings are now asking back their kingdom because we have not got Ram Rajya. The promise of Sardar Patel ji,
रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ऐसा है। इसीलिए हम गोपाल जी, थैंक यू फॉर गिविंग मी द प्लेटफॉर्म। I do not know whether you will get a call from PMO, but you will get a proper assurance that we will have this problem solved. Thank you, Masi. Thank you, Swamiji, for leading this battle from the front. If you have to think of who's the ideal person to fight dharma, I really cannot picture anyone who is more aptly suited and blessed and who is Bhagwan himself. It has to be a practitioner of dharma who is also aware of the law and can raise important questions. And we are so grateful as a nation that someone like Swamiji is there leading this battle. So I think a round of applause and gratitude for the work that Swamiji has been doing. Esther ji, a question to you. Why are you fighting Christian conversions? And what are the threats that you are receiving personally and this whole cause or this movement of fighting forced conversions is facing? Can you just throw some light on that? Sinaji, you've asked me two questions. One is a personal question. I'll put that to the last. That too, if I have time, I will address that question. I think that's irrelevant to the going on topics. I don't want to take any time out of that. So, why is it a problem? Why are conversions a problem? See, India is basically Hinduism. We'll talk about the dharma. Hinduism, the religion. So Hinduism has a pantheon of deities, gods and goddesses. So जहाँ इतने सारे देवी देवता वहाँ पे एक और क्यों नहीं? I have been asked this question by Hindus on social media comments and all. So बात अगर देवी या देवता का होता तो there would not have been any problem. If it was about spirituality or divinity, कोई बात ही नहीं होती। मैं मेरी फ्लरिशिंग करियर देखते हुए मैं अमेरिका में अभी भी मैं वहीं पे रहती। I wouldn't have taken to the streets like I have taken now, raising awareness. But Christianity is more than just spirituality and divinity. In fact, there is no divinity and spirituality in the Christian agenda. All these conversions एक ही गोल से होता है, which is dominion. So, if it was only adding one more deity to the Hindu pantheon, ऐसे कई सारे हमारे जो पुराणों में नहीं हैं, ऐसे deities have been added in not so past. Sai Baba. So, why are we having a problem with adding Jesus to the pantheon of Hindu pantheon? The problem here is Christianity is a zero competition religion. Christianity says हमें कोई competition नहीं चाहिए. It is all or nothing. इसको Christian studies में कहा जाता है. It is all or nothing. या तो हमें पूरा चाहिए या कुछ भी नहीं चाहिए. कुछ भी नहीं चाहिए is just a facade, एक मुखौटा होता है. But इनको सब कुछ चाहिए. So they want dominion. They do not want to assimilate. Do not want to add themselves to the existing religious philosophy. They want to replace the existing religious philosophy. It has been like that. हमें हिस्ट्री में अगर हम जाएंगे तो कई सारे हमको एग्जाम्पल्स भी नजर आएंगे, जैसे अमेरिकास का आक्रमण ऐसे ही हुआ है. ऑस्ट्रेलिया हैज बीन plundered like that, occupied like that. तो यहाँ हो क्या रहा है? If you actually look at what Christianity has been doing from the beginning of its history, is everything that it does is rooted in its theology and it's rooted in its Bible, in the Bible. जैसे separatism, secessionism, dominionism. So ये सारे isms जितने सारे हैं, they all mean the same thing, which is, I would say, dominating the world. So they want to create a Christian theocracy, Christian world. So इसी के चलते they have occupied all these lands. Now they want to do that to India.
So if it was only divinity or spirituality, the accepting race that we are, we would not have had any problem. But it is just not about divinity or spirituality. Now, I have talked about the history, how they have occupied Americas and and Australia and other continents. Now, slavery also comes out of their theology. That is, subjugating another human being. So, this is also very biblical, very theological. Now, recent happenings में आते हैं. तो recently कई सारे मतलब recently नहीं, time to time these so-called Christian leaders, prominent Christian leaders have been doing so much of hate speech. और मेरी PIL में भी I have raised this particular thing. I have documented all the hate speeches that have been made by different Christian pastors from mostly from South India. I'll give you an example of how it is. There is a person called P.D. Sundarrao, pastor hai. Now I have no problem in taking the names. I've said this on several platforms, saying it again. So this person has talked about हमारा तिरंगा. उसने कहा कि तिरंगा तो एक रद्दी का कागज है, एक कपड़े का टुकड़ा है, तो इसके आगे जो इसको जो सल्यूट करता है वो बेवकूफ है. Which is he is calling all the leaders, हमारे प्रधानमंत्री से लेकर सभी को, defense people, everybody he is calling बेवकूफ, and he gets away saying that that's the best part here. उसने और भी कहा कि हमारी जो national anthem है, that sounds like the braying of a donkey. गधे की आवाज जैसी साउंड करती है. इसके लिए लोग क्या ताली बजाते हैं, इसके लिए लोग क्या इमोशनल होते हैं, कितने बेवकूफ हैं. तो and he gets away saying that also, and he has challenged the police force, हमारे law and order को challenge किया है कि कोई मुझे arrest करके दिखाए, and he got away saying this, and he has not been arrested. कोई FIR भी फाइल नहीं हुई है. But there is another prominent Christian leader who is followed by dozens of Christian youth. And by the way, ये तिरंगा के बारे में जिसने जो बोला, he runs a Bible university, जहाँ से hundreds of Christian youth graduate every year. So imagine the kind of generation, the next generation that they are preparing. There's another pastor who was caught, who has asked, ये जो हिंदू हमेशा भारत माता बोल के चिल्लाते हैं, भारत माता के कितने पति है. So he has listed all the देवतास, हमारे देवताओं को भारत माता के हस्बैंड्स कहा है उसने, and he has asked कि भारत माता के कितने हस्बैंड्स हैं. तो these are actually non-bailable offenses, but क्योंकि हमारे पास ऐसी कोई प्रोविजन नहीं है हमारे लॉ में, ये पूरे इनके ऊपर कोई FIR भी दर्ज नहीं होती है. ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 अरेस्ट होती है, सिर्फ इसलिए कि लोकल हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस संगठित होके प्रेशर लेके आते हैं ऑन द पुलिस, लोकल पुलिस स्टेशन टू मेक द अरेस्ट. बस इसी वजह से अरेस्ट होती है, बट कार्रवाई कुछ भी नहीं होती है. 1-2 दिन में छूट भी जाते हैं वो लोग. So this is all hate speech on Hindu देवी देवता and national symbols. इसके और थोड़ा, because these offenses have not been taken into account and no arrests have been made, उनको और पूरी they go to the next level. अब next level पे क्या करते हैं, यूनिवर्सिटी, किसी यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर एक वो कहता है कि हिंदू जो हमसे बहुत परेशान हैं, क्यों ना भारत को दोबारा 2 टुकड़े में बांटा जाए. एक टुकड़ा क्रिश्चियंस को दे दो इस बार, पिछले बार मुस्लिम्स को दिया है, इस बार क्रिश्चियंस को दे दो, हम दोबारा हिंदुओं को तंग नहीं करेंगे. ये तो यही बात हुई ना, पापा मुझे बाइक दिलाओ वरना मैं ये घर जला डालूंगा. जिस दिन आप मुझे बाइक दिलाओगे मैं आपको तंग नहीं करूंगा. It's just like that. It is emotional blackmail. So, and he gets away with that. There is no law, there is no FIR, कुछ नहीं होता है, कोई कार्रवाई नहीं होता है. And this is called sedition. And sedition is a cognizable, non-bailable offense. तो
ऐसे आगे जाके देयर हैव बीन सो मेनी हेट स्पीचेस, क्योंकि उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई और थोड़ा आगे जाते हैं ये लोग और थोड़ा दे बिकम मोर बोल्ड. एंड नाउ रिसेंटली there is a Tamil Nadu say there is a pastor, actually he's a bishop of DMK. His name is Ezra Sargunan. He goes ahead and says, punch the Hindus in their faces, make them bleed till they accept the truth. By truth he means Christianity. And no arrest. And they say all these things on public platforms. वे अपने closed circles में नहीं बल्कि public platform पे ये कहा जा रहा है, and there is nothing done. Which is what we are fighting, Sinuji. So it is not just the conversions. We want a law so strong कि कोई भी मतलब बात यहाँ पे सिर्फ हिंदू की नहीं है. This is about national security. We're talking about separatism, separating the nation. So this is what we are fighting. And I will tell you another incident. इनकी इतनी boldness बढ़ गई है. While they say that they are only 2% today. So officially they are just 2%. जबकि संख्या कई ज़्यादा है इससे. ये भी हैदराबाद की एक बात है. दिवाली के दिन सो अपार्टमेंट्स में देयर वाज अ क्रिश्चियन फैमिली एंड ऑपोजिट अपार्टमेंट में हिंदू फैमिली रहती है. फैमिली नहीं, ये 4-5 लड़कियों ने सिविल सर्विसेज प्रिपेयर होने के लिए सिटी में आए, अपार्टमेंट रेंट पे लेके वो लोग रह रहे हैं वहाँ पे. तो दिवाली के दिन उनके तरफ के जो घर के सामने दरवाजे के सामने उन्होंने रंगोली डाली और दिया लगाए. तो सामने के घर से क्रिश्चियन लेडी कम्स आउट एंड शी किक्स द दियास. रंगोली को पैर से मिटा के वो बोलती है तुम लोग न्यूसेंस कर रहे हो. तो ये लड़कियां बोलती है हमने तो अभी पटाखे जलाने भी शुरू नहीं किए, तो न्यूसेंस कहाँ से हुआ? They said no, you are creating nuisance. Just I don't want this nonsense. It's all caught on camera. Then there are a few Hindus who came to the support of her, and 2 grown-up boys of that Christian lady, they come out and start abusing the girl, assaulting the modesty or outraging the modesty of a woman, right? No such offences ever made on them. FIR दर्ज तो हुआ है, but very light offences have been booked of that family. फिर आखिर में जब ये लड़कियां ऊंची आवाज में बोलना शुरू करती हैं तो वो औरत चप्पल उठा के मारने की धमकी देती है. At 2% this is what they do. Just imagine if they were to be 10, 15, 20% officially, तो क्या हाल होने वाला है. And we talk about Hindu majority today. So at this point we really feel that there has to be a strict law, of course, to curb forced coerced conversions. There have been some bills already which have not been made into laws, but who is executing that law? Who is executing? So we will fight about this. We will continue to fight. Because Christianity is not just about adding one more devta to our list of Devi Devtas. This is much deeper, and this is definitely a threat to national security, individual security. Because you've seen in the case of Diwali example. So, if you actually see the pattern, अभी जो incidents मैंने बताई है, इसकी timeline आप देखिए, किसके बाद क्या हुआ है. Because action has not been taken on a smaller offense, a bigger offense happens. उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं होती है, they go a step ahead. तो ऐसे you see a pattern of boldness there. So they are trying to make a statement with all this, which definitely needs to be curbed at the central level. And we will fight till we get that law. भगनी की बातें सुन के हम सब बहुत भावुक हो जाते हैं ना, तो अंदर की दुर्गा जो है वो जाग उठती है. ये सच्चाई है और मैं चाहती थी कि एस्टर जी सच्चाई को आप सबके सामने रखें, क्योंकि ये सिर्फ एक रिलीजन की बात नहीं है. इट डज कॉम्प्रोमाइज नेशनल सिक्योरिटी बहुत ही इंडिविजुअल लेवल पे, जैसे कि कैथलिक फैमिली जहाँ पे मैं पली बड़ी थी. Your loyalty is outside the country. It is to the Pope. It is not to this country. So unknowingly you grow up wanting to be like another nation, respecting another culture altogether, and not just respecting another culture, in the process putting down
this culture, and that is absolutely unacceptable. Thank you for putting it so well. We have just a few minutes to conclude this and then take the questions. I would like Swamiji to 1 minute I would like to add. All the जो बैठे हैं ऑडियंस में, एक बात याद रखिए, कभी भी मैं बोलता हूँ कि कन्वर्शंस के बारे में, आप लोग प्रहलाद को जानते हैं? प्रहलाद नरसिंह भगवान का अवतार का कारण, प्रहलाद को जानते हैं? प्रहलाद एक ही जो भक्त था वो कन्वर्ट नहीं हुआ, अकेला, only one devotee. The entire universe was converted as Hiranyakashipu's bhaktas. हिरण्यकशिपु के नाम के अर्चना चल रही मंदिरों में, हिरण्यकशिपु के नाम के पूजा चल रही है मंदिरों में। वो प्रहलाद उनका लड़का है, पिताजी के अगेंस्ट, एक छोटा सा बालक। तमिल में एक सेंटेंस है, मणि साहब को याद होगा, इस तरह हम लोग सैनिक मान लेते हैं अपने आप को। कभी कभी पूछते हैं बड़े लोग, इस देश में बरसात होता क्या? इतना अधर्म है, इतना अधर्मी लोग हैं, इस देश में कैसा बरसात होगा? उसने एक सेंटेंस है, नल्लार ஒருவர் இருக்கே அவர் பொருட்டு எல்லாருக்கும் பெய்யுமாம் மழை। अगर से एक धर्म के हिसाब से चलने वाला एक आदमी होगा, उसके लिए बरसात भी उतर के आता है। अपना लड़ाई चलने का है, नो प्रॉब्लम, लेट द होल वर्ल्ड गेट कन्वर्टेड, but we will fight for our dharma. नहीं तो इस पैनल में हम कहाँ हैदराबाद, ये सीनू कहाँ उधर बेंगलुरु, ये कहाँ हम लोग आपस में इधर बैठ के, सूरत कहाँ, तेलंगाना का हैदराबाद कहाँ, हम लोग ऑनलाइन में तो नहीं है, ऑफलाइन में बैठे। इधर हमारा नेटवर्क बालाजी नेटवर्क है, ये 5G नहीं है, 4G भी नहीं है, ये बालाजी नेटवर्क है, बहुत पावरफुल है। hope all of you also tune into the same network. गोपाल जी आए कि नहीं आए? उनके लिए बुलाई वायरस में, उनका नाम बोला गया 2 बार। बहुत धन्यवाद स्वामी जी। समय के कमी के कारण इस सेशन को यहीं पर समाप्त करनी पड़ेगी। क्वेश्चंस लेने का समय है? नहीं, सॉरी, क्वेश्चंस लेने का भी समय नहीं है, लेकिन आई थिंक स्वामी जी ने और एस्टर जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से बहुत ही हमें इंफॉर्मेशन दिया है, एंड वी आर ऑल चार्ज्ड अप। We have made the audience dumbfounded. I think everyone is charged with the mission to fight for dharma and to live for dharma. So thank you for being such a patient audience, and you will have opportunity to interact with the guests but off stage. Thank you.